ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 33۔ زینی آنٹی، حیا فاطمہ کے کمرے سے باہر نکلتی پانی پینے کے لیے کچن میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ کوریڈور میں موجود زینی کی جانب اٹھ گئی۔ اس کو اوندے منہ نیچے گرا دیکھ حیا کے حلق سے چیخ نما آواز برآمد ہوئی۔ شور سنتے رفتہ رفتہ سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ فاطمہ جلدی سے آگے بڑھتے زینی کا چہرہ تھپ تھپانے لگی۔ تب تک مریم بھی پانی کا گلاس تھامے وہاں آ گئی۔ فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھامے زینی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے اسے ہوش میں لانے کی سعی کی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہونے کے باعث اچانک اذلان کو اپنی سماعتوں میں کچھ شوریدہ آوازیں سنائی دیں تو وہ بھی ہڑبڑانے کے انداز میں کمرے سے باہر آ گیا۔ کوریڈور میں غیر معمولی رش دیکھ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں آیا، مگر سامنے زینی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ اذلان کی آنکھیں ششدر انداز میں اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔ وہ جلدی سے نیچے جھکا اور پھر زینی کی کلائی تھامے اس کی نبض ٹٹول کر چیک کرنے لگا۔ رفتار کو ہر درجہ دھیما دیکھ پریشانی کے مارے اذلان کو اپنی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوتے محسوس ہوئے۔ زرار، ڈرائیور سے کہو کار نکالے، جلدی! اذلان نے تیز لہجے میں زرار کو مخاطب کرتے زینی کا چہرہ نرمی سے تھپ تھپائے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر زینی کا وجود تو شاید دنیا سے کنارہ کشی کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ جی! اذلان کے کہنے کی دیر ہی تھی کہ زرار الٹے قدموں چلتا فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اذلان بھائی، یہ زینی کو اچانک ہوا کیا؟ آپ کے آفس جانے سے پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ فاطمہ نے زینی کو پریشان نگاہوں سمیت دیکھتے تفکر آمیز لہجے میں اذلان سے استفسار کیا۔ اذلان اس وقت جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے بنا کچھ کہے زینی کو اٹھائے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اذلان کے بیٹھنے کی دیر ہی تھی کہ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کی اور زن سے گیٹ عبور کر گیا، کیونکہ ایمرجنسی صورتحال کو دیکھتے سیکورٹی اہلکاروں نے گیٹ پہلے سے ہی کھول رکھا تھا۔ زرار بیٹے، ہمیں بھی ہاسپٹل لے چلیں، زینی کو اس وقت ہماری ضرورت ہوگی۔ زرار کو وہیں پریشان کھڑا دیکھ فاطمہ نے اپنے مخصوص نرم انداز میں اس سے ریکویسٹ کی۔ آج وہ چاہ کر بھی اس کی بات رد نہیں کر پایا، بلکہ اس بات میں سر ہلاتے پورچ میں موجود دوسری کار کی طرف بڑھ گیا۔ فاطمہ آنٹی، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے پلیز۔ حیا کا ملتجئانہ انداز دیکھتے فاطمہ نے حامی بھر دی۔ اب وہ تینوں ایک ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھیں۔ زرار نے بیک ویو مرر سے ایک نظر حیا کے پریشان چہرے کو دیکھتے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لی۔ ارادہ اسی ہاسپٹل جانے کا ہی تھا جہاں اذلان زینب کو لے کر گیا تھا۔ صوفیہ نے مسرور کن چال چلتے پورچ سے اپنے فلیٹ کے داخلی دروازے تک کا سفر کیا۔ اس کے اندر آتے ہی ملازمہ نے مؤدب انداز میں آگے بڑھتے اس کے ہاتھ میں موجود پرس تھامے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ملازمہ نے اسے خوش آمدید لہجے میں سلام کیا، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا ہی صوفے پر ڈہنے کے انداز میں بیٹھتی اپنے جوتے کے اسٹرپ کھولنے لگ گئی۔ صوفیہ کے چہرے پر اس وقت فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، تبھی اس کے سامنے موجود ٹیبل پر رکھا موبائل فون دھیمی آواز سمیت ادھر سے ادھر ہلنے لگا، کیونکہ موبائل فون کا وائبریشن موڈ پہلے سے ہی آن تھا۔ ہیلو پیٹر، ہاؤ آر یو؟ پہلی بیل پر فون ریسیو ہوتا دیکھ پیٹر کی آنکھوں میں تحیر در آیا۔ یو پکڈ مائی فون ایٹ فرسٹ کال؟ ریئلی اٹس ویری اسٹرینج۔ صوفیہ کی چہکتی آواز سنتے پیٹر نے چونکتے ہوئے فون کو ایک دفعہ کان سے ہٹایا اور پھر اگلے ہی لمحے واپس کان کے ساتھ لگا لیا۔ ہاں ایکچولی پیٹر، آئی ایم ویری 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 ہیپی ٹوڈے۔ صوفیہ نے اپنے دودیا پاؤں کو جوتوں کی قید سے آزاد کیا اور پھر ملازمہ کے ہاتھ سے پانی تھامے اسے وہاں سے جانے کا حکم دے دیا۔ اب وہ مطمئن تاثرات سمیت صوفے پر بیٹھی پیٹر سے بات کرنے میں محو ہو گئی۔ ملازمہ حکم کی تعمیل کی خاطر سر کو ہلکا سا خم دیتی وہاں سے چلی گئی۔ اوہ واو، دیٹس ویری گڈ نیوز۔ ہاؤ اباؤٹ یور پلان؟ از اٹ ورکنگ فار یو اور ناٹ؟ پیٹر کا انداز استفساریہ تھا۔ ایکچولی ناٹ۔ صوفیہ نے ابھی کچھ کہنا شروع ہی کیا تھا کہ اسے اپنی سماعتوں میں پیٹر کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ بٹ وائی؟ دے آر ویری ٹیلنٹڈ گائز صوفی، ہاؤ از دس پاسبل؟ پیٹر واقعی شوق کی کیفیت میں گھر چکا تھا۔ اس نے تو انہیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا تھا، وہ پلان کام نہیں کر رہا تھا، یہ چیز اس کے لیے واقعی حیران کن تھی۔ لسن پیٹر، آئی تھنک آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو آل دس۔ اذلان بیہیویئر ہیز بین ٹوٹلی چینج۔ آئی تھنک ہی ریئلائز دس بورنگ گرل زینب ڈزنٹ میچ ود ہز cool and dashing personality. I'm sure he's fall in love with me. صوفیہ نے چمکتی آنکھوں میں دل نشیں انداز میں جواب دیا۔ جواباً پیٹر کے تاثرات ایسے تھے جیسے میٹھا کھاتے کھاتے اچانک کڑوا بادام منہ میں آ گیا ہو۔ صوفیہ سے فلرٹ کرتے کرتے وہ حقیقت میں اس سے دل لگا بیٹھا، اس بات کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔
Wow, that's great. Congrats, Sophie. Finally, you find your true love. I'm so happy for you. पीटर ने खिलाफ तवक्का मुस्कुराते हुए सोफिया को जवाब दी। ये तो सिर्फ इसका दिल ही जानता था कि उसे ये बात सुनकर ज़र्रा बराबर भी खुशी महसूस नहीं हुई। मोहब्बत उस पंछी से करो जो आज़ादी मिलने के बावजूद तुम्हारी कैद में ही रहना पसंद करे। पीटर का तो ये प्लान था कि अगर सोफिया अजलान के साथ ये सब करेगी तो वो उसके करीब आने की बजाय उल्टा इससे दूर हो जाएगा, मगर अब तो सोफिया इसे इस प्लान पर काम करने से ही मना कर रही थी। सोफिया के इस रद्द-ए-अमल ने इसके इरादों पर पानी फेर दिया था। इसे लग रहा था अजलान के उखड़ मिजाज को करीब से देख सोफिया का दिल खुद ही इसकी मोहब्बत से उचाट हो जाएगा, मगर वो ये भूल गया था हम में से जो कोई सिर्फ अपनी तवक्कात का सबक पढ़ लेता है ना, उसके लिए दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरने का सबक सीखना बहुत मुश्किल काम है। वो एक लड़की होने के बावजूद अजलान को हासिल करने के लिए अपनी इज्जत तक को दांव पर लगाने को तैयार बैठी थी, और पीटर इस मुश्किल वक्त में सोफिया का सहारा बनते इसका दिल जीतना चाहता था। बुरे वक्त में इसका साथ देना चाहता था ताकि वो हमेशा के लिए इसकी होकर रह जाए, मगर अब तो ये सिर्फ इसकी खाम ख्याली रह गई थी। थैंक्स पीटर, यू आर माई ट्रू फ्रेंड। अगर अजलान मेरी ज़िंदगी में ना होता तो यकीन मानो मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करती। सोफिया को पता था पीटर अब किसी हद तक उर्दू समझने लगा, इसलिए अपनी आखिरी बात शिद्दत जज्बात में कहते पीटर के दिल को दरीना खुशी से दो चार कर गई थी। थैंक यू सो मच सोफी, मीन्स अ लॉट। सोफिया अपनी ज़ाहरी खूबसूरती और दिलकश हंसी का फ़ायदा उठाते इसी तरह पीटर को अपने काबू में रखती थी। ओके बाय। सोफिया ने चंद एक बातों के बाद अलविदाई कलमात कहते फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो गैलरी फोल्डर से अजलान की तस्वीरें निकाले इन्हें जूम अप करके देख रही थी। इसके नज़दीक अजलान की सोचों में गुम रहना ही वक्त गुजारने का बेहतरीन तरीका था। इसका कमरा जाइंट साइज़ फ्रेम में जुड़ी अजलान की तस्वीरों से भरा हुआ था। इसे लगता था एक ना एक दिन अजलान इसके पास ज़रूर आएगा, तब वो उसे ये सब तस्वीरें दिखाकर अपनी मोहब्बत की शिद्दत से आगाह करेगी। अब तो वो अजलान की मोहब्बत में इस हद तक पागल हो चुकी थी कि कुछ दिनों पहले अपने बाजू पर अजलान के नाम के पहले हर्फ ए का टैटू तक बनवा लिया। इसके नरम पोर अब धीरे धीरे बाजू पर कुनिंदा हर्फ ए को नरमी से छू रहे थे। वो तन्हा बैठी तहय्युल में अजलान को अपने बहुत करीब तस्वुर करती धीमे से मुस्कुराए जा रही थी। आसपास गुजरते मुलाजिम सोफिया की इस जज्बाती कैफियत से वाकिफ़ थे, इसलिए कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया, क्योंकि इनके लिए तो ये सब रोज़ का मामूल था। सोफिया इस वक्त सिर्फ अपने जज्बात को देख रही थी। वो इस हकीकत से अक्सर अनजान थी कि घर खरीदने से पहले हमसाया और सफ़र से पहले हमसफ़र की तहकीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों के साथ ना बनने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी अजियत में गुजरती है। पिछले 5 घंटों से ज़ैनब आईसीयू में बंद ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने में मसरूफ़ थी। बाहर बैठे तमाम नफूस के चेहरे पर छाई संजीदगी हालात की संगीनी का मुंह बोलता सबूत थी। अजलान शिफा बता रही थी जैनी को कोई गहरा सदमा पहुंचा। क्या उन्होंने तुमसे कोई बात शेयर की थी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अचानक ये सब हुआ कैसे। अफान भाई को हॉस्पिटल पहुंचे 2.5 घंटे से ज़्यादा का अरसा बीत गया था। अजलान को बींचे तासरात समेत हनूज इसी पोजीशन में बैठा देख अफान से रहा ना गया, इसलिए थोड़ा सख्त लहजे में इससे बाज पुरस करने लगे। इन्हें बार बार यही लग रहा था कि ज़ैनब की इस हालत का जिम्मेदार अजलान ही हो सकता है। अफान भाई, ये वक्त इन सब बातों का नहीं, हमें इस वक्त ज़ैनब भाभी की सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए। अजलान को नादम अंदाज में सर को नीचे झुकाते देखा यान ने फ़ौरन आगे बढ़ते बात का रुख ही बदल दिया। अजलान, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अयान ने अजलान को ज़बरदस्ती बाजुओं से थामे कुर्सी से उठाया और इसे अपने साथ लिए शिफा के पर्सनल रूम में चला गया, जहां वो रोज़ ड्यूटी के दौरान अपने पेशेंट्स का मुकम्मल चेकअप करती थी। आज वो कमरा खाली था क्योंकि शिफा इस वक्त आईसीयू में बाकी डॉक्टर्स की टीम के साथ ज़ैनब के ट्रीटमेंट में हिस्सा ले रही थी। अजलान, क्या हुआ तुम्हें? अयान ने अंदर आते ही मुद्दे की बात की। अयान, अगर मेरी वजह से ज़ैनब को कुछ भी हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कभी भी नहीं। अयान सीने पर हाथ बांधे अजलान के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। वो अच्छी तरह जानता था कि अजलान इस वक्त जहनी किस्म के दबाव का शिकार है, इसलिए वहाँ से ज़बरदस्ती उठाए यहाँ ले आया। इसकी ये कोशिश कामयाब भी रही थी क्योंकि अजलान, जो काफ़ी वक्त से खामोश बैठा हुआ था, अयान के पूछने पर खुलकर इससे अपनी दिली कैफियत बयान करने लगा था। तुम्हारी वजह से? तुमने क्या किया? डोंट टेल मी यार, भाभी की इस हालत के ज़िम्मेदार तुम हो। अयान अब हैरत भरी निगाहों समेत अजलान को ही देखे जा रहा था। अजलान ने मुज़्दब तासरात समेत अपने बालों में हाथ फेरते सारी बात अयान के गोश गुजार करना शुरू कर दी।
अयान अधखुले होंठों समेत इसका कहा गया एक एक लफ्ज़ पूरी तवज्जो से सुन रहा था। अजलान, सरासर तुम्हारी गलती है, तुम्हें डोर लॉक करके अपना काम करना चाहिए था ना। अयान ने इस बिगड़ी सूरत हाल से यही नतीजा अखज़ किया था। यार मुझे क्या पता था आज ही के दिन ज़ैनब मेरे ऑफिस में आ जाएंगी। पहले तो वो कभी भी नहीं आई। अगर आज भी आने से पहले इन्फॉर्म कर देती तो ये सब कभी नहीं होता। मगर अब अजलान बोझल शानों समेत ध्यान के अंदाज में पास मौजूद चेयर पर बैठ गया था। अगर वो ना होती तो कोई और हो सकता था। इस मंजर को देखकर तुम्हारे शफाफ और बेदाग कैरियर पर हज़ारों सवाल उठ जाते। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। यार तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? और कुछ ना सही, कम से कम ज़मान को ही डोर के सामने खड़ा कर देते। अयान इसकी लापरवाही पर इसे सख्ती से बाज़ पुरस कर रहा था और नादम अंदाज में सर झुका इसकी सारी बातें खामोशी से सुन रहा था। वो दोनों ही हालात की संगीनी भांप चुके थे। यार जिस मोहब्बत पर मुझे नाज था उसे महसूस करते मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मर्द तस्वर करता था। आज ज़ैनब उसी मोहब्बत को अपनी बचगाना गलती कह रही थी। अजलान के चेहरे पर दुख के स्याह बादल छाए हुए थे। ज़ैनी का अपनी मोहब्बत को एक गलती करार देना अजलान को अंदर तक हिलने पर मजबूर कर चुका था। यार इस सब में उनकी कोई गलती नहीं है। बकौल तुम्हारे तुम इस वक्त सोफिया के बेहद करीब था, इसलिए वो भी इस गलत फहमी का शिकार हो गई। अजलान को दुख की अथाह गहराइयों में मुब्तला देखकर यार ने इसके शाने पर हाथ रखे इसे नरम लहजे में तसल्ली देना चाहिए। यार नहीं, इन्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था ना। उन्होंने तो मेरी बात सुनना गवारा ही नहीं किया। ज़ैनी का इसके किरदार पर शक करना इसकी रूह तक को ज़ख्मी कर गया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये सिर्फ तुम जानते हो कि तुम इस वक्त मिशन के सिलसिले में सोफिया के पास गए थे। ज़ैनी भाभी तो इस बात से लाइलम है ना। और वैसे भी ज़ैनब भाभी तो क्या कोई भी बीवी अपने शौहर को किसी गैर लड़की के साथ इस हालत में नहीं देख सकती। अयान ने ज़ैनी के रवैये को दुरुस्त करार दिया था। अब मैं क्या करूं यार, कैसे यकीन दिलाऊं इन्हें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अजलान ने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े परेशान अंदाज में अयान से मदद तलब की। मेरी मानो तो भाभी को अपने टाइगर होने की सारी असलियत बता दो। जैसे इन्हें असलियत पता चलेगी उनकी सारी नाराज़गी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अयान ने अपने तहीं से एक मुफीद मशवरे से नवाजा था। ये किसी तौर मुमकिन नहीं है यार, तुम जानते हो मैंने आज तक अपने किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी दोस्त को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। तुम भी सिर्फ इसलिए जानते हो क्योंकि तुम मेरे साथ पीएमए में ट्रेनिंग करते रहो, वरना मैं तुम्हें भी कभी नहीं बताता। मैं खुद की वजह से अपनी किसी फैमिली मेम्बर की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अजलान ने कतई लहजे में गोया तो साफ इनकार कर दिया। यार अफ़ान भाई भी तो जानते हैं ना, तुम ज़ैनब भाभी को भी बता दो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अयान ने इसे मनाने की अदना सी कोशिश की। जहाँ तक अफ़ान भाई की बात है, तुमने ही कहा था वही बाबा मुझसे मुझे एक्टिंग करने की परमिशन दिलवा सकते हैं। वैसे तो मिलने से रही, इन्हें भी मजबूरी में बताना पड़ा। अजलान की एक एक बात हकीकत पर मबनी थी और अयान इसके ऐनी शाहिदीन में से ही एक था। मगर ज़ैनब भाभी, अयान शशोपंज की कैफियत में गिर चुका था। यार अगर अब मैं अब तक ज़ैनब से नफ़रत कर रहा होता तब भी मैं उनका नाम किसी तौर सामने नहीं लाता। अब तो फिर मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं कैसे उनकी लाइफ को रिस्क में डाल सकता हूँ। अजलान का हर उज़ू ज़ैनी की मोहब्बत की गवाही दे रहा था। हम सीक्रेट एजेंट की लाइफ पर सिर्फ हमारी फैमिली का हक नहीं होता, हमारी हर एक सांस हमारी कौम के नाम होती है। हम अपनी फैमिली और जज्बात को बीच में लाकर उनसे बेवफाई नहीं कर सकते। अजलान के हुब्बुल वतनी के जज्बे ने इसकी आंखों में एक खुशनुमा चमक भर दी थी। यार मुझे फ़ख्र है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे हुब्बुल वतनी के जज्बे पर। अयान ने इसे सरतापास राहती निगाहों से देखा। मगर यार इस वक्त भाभी तुम्हें एक बेवफा मर्द से ज़्यादा कुछ नहीं समझती, बस मुझे इसी बात की फ़िक्र हो रही है। अयान का हंसमुख लहजा इस वक्त तब्दील होता तफक्कुर में ढल चुका था। मुझे इस बात की इतनी फ़िक्र नहीं है कि उन्होंने मुझे बेवफा समझा, मुझे ये बात अजियत में मुब्तला करी है कि उन्होंने गुस्से में अपनी मोहब्बत को गलती तक का खिताब दे डाला। कैन यू इमेजिन गलती? अजलान को अभी भी ज़ैनी का गलती लफ्ज़ अपने कानों में बाज़गश्त बनता सुनाई दे रहा था। इसे तसल्ली देने के लिए यान के पास कोई अल्फाज ही नहीं बचे, इसलिए दम साधे उसकी बातें सुन रहा था। शिफा भाभी कह रही थी उनका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है, अगर इन्हें जल्दी होश ना आया तो वो कोमा में। हद दर्जा परेशानी के बायस अजलान अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर पा रहा था। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मैं कैसे जी पाऊँगा यार। अजलान आज बेबसी की इंतहा को छू रहा था।